غلطی ہے اور ہم جو یہاں مختلف پارٹیوں کے بیٹھے ہیں ہم اس کی مکمل تعین کرتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ایک حکومت بننے کے لیے ہمیں اپنی تمام اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا اور قرآن حدیث اور قرآن حدیث سے جو درس کیا ہے اس کو اپنانا ہوگا. اسی میں ہم اپنی بقا اور صلاحیت میں گزارش کروں گا قانونی رہنما بھی ہیں, سماجی رہنما ہیں اور کشمیر کے بارے میں بہت لکھا بھی ہے آپ نے جناب بشیر سروی صاحب وقت کے ساتھ سے بسم اللہ حضرت اور ہمارے میڈیا کے دوستوں, جیسا کہ پالیسی ہے کہ وہ مختصر بولنا اور ویسے طویل آج کی پریس کانفرنس کا جو مدعا تھا بیان کیا گیا ہے. میں فلسطین فاؤنڈیشن اور ان کے انتظامیہ کو اپنی کمیونٹی یعنی کشمیری جو خود اس وقت ایک بڑے اداروں کے ساتھ اس کے شکنجے میں بڑی فوج کے ساتھ زمان ہے اس کی طرف سے مکمل حمایت اور ان کا جو بھی ایجنڈا ہے فلسطین کے حوالے سے حمایت کرتا ہوں, اس لیے کہ ہم سے زیادہ فلسطین کے مسائل کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. اور ہمیں افسوس ہے کہ بعض مسلم ممالک جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے وہ چاہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا بیان جو اس نے امریکہ کے ذرائع ابلاغ کر دیا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات مشرق وسطیٰ میں بہترین امن کے لیے بہتر ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلسطین کا مسئلہ حل کیے بغیر, فلسطین کی لوگوں کی مخدش امن کیے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن بحال نہیں ہو سکتا, اور کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن بحال نہیں ہو سکتا. دنیا کے تمام حکمرانوں اور خصوصاً مسلم حکمرانوں کو اس بات کو نوٹ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. میجر عمر عباس صاحب سابق رکن صوبائی اسمبلی اور ایم کیو بحالی کمیٹی کا چیئرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے جو معزز اراکین جہاں پر موجود ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حسب سابق یہاں پر مجھے بلایا, اور بالخصوص ڈاکٹر صابر ابو مریم کا جو ہمیشہ کشمیر اور فلسطین کاز کے حوالے سے وہ آگے رہتے ہیں, اور آج بھی مسئلہ فلسطین کے لیے انہوں نے یہ پریس کانفرنس کا انتظار کیا. یہاں پر میرے صحافی دوست بھی ہیں اور وہ ڈیفینیٹلی اس پریس کانفرنس کی کوشش کے لیے آئے ہیں. اور جس سے پہلے میرے مقرر نے کہا کہ ہم یہاں بات تو کرتے ہیں لیکن یہاں سے جب اٹھ کے جاتے ہیں تو یہ ساری جو پریس کانفرنس ہے تمام چیزیں بالکل انٹرنل گورنمنٹ ہو جاتی ہے اور اس کی ایسا کوئی میڈیا میں کوریج نہیں ہوتی. تو میری آپ سے درخواست ہے, ابتدا ہے کہ آپ لوگ اپنے چینل کے ذریعے اپنے اخبارات کے ذریعے جو بھی فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے جو ایشو ہوتا ہے اس کو ضرور مینشن کریں. باقی السلام علیکم. فلسطین فاؤنڈیشن ہمیشہ کی طرح مسئلہ فلسطین کے لیے ماہ رمضان میں بھی اس کانفرنس کا انعقاد کیا جس کے ڈاکٹر صابر ابو مریم اور پوری ٹیم قابل ستائش. جہاں بات ہوئی میڈیا کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے دوست کافی حد تک اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں, لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن مالکان کے اور ان کے حوالے سے وہ نہیں کرتے. تو جس طرح سے ہم فلسطین کے اور کشمیر کے ایشو کے اوپر اس پلیٹ فارم پر آواز اٹھا کر اپنا حق ادا کرتے ہیں, آپ لوگ بھی کوریج کر کر اپنا حق تو ادا کرتے ہیں, لیکن اگر اس کو نشر نہیں کیا جاتا تو میرے خیال میں وہ لوگ ذمہ داران ہیں. آپ لوگ اپنے فرائض سے بخوبی نظر آزمائیں. جہاں تک یوم القدس کی بات ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قبلہ اول کی آزادی کے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کبھی بھی متحد. رمضان کا مہینہ ایک واحد مہینہ ہے, اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم آپس کی چکرشیں ہیں جو رمضان کی تعلیمات ہیں وہ بیسکلی یہی ہیں کہ ہم اپنی آپس کی ذاتی انعام اور اس چیز کی قربانی دے کر یکجا ہو سکیں. اور ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کلمے کا دوسرا حصہ ہم نہ پڑھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں. اور امت
उम्मत मुस्लिमा को तकसीम करने के लिए उस नबी की शान में गुस्ताखी कर कर ये उम्मत मुस्लिमा को मज़ीद तकसीम करने की कोशिशें करते हैं। और जो हालात इस वक्त आलमी सतह पर हैं उसमें इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर ग्रुप के लोगों को लग रहा है कि शायद पर से कुछ न चला गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और इसी को दबाने की खातिर इस तरह की फितने और इस तरह की चीज़ें की जाती हैं ताकि उम्मत मुस्लिमा इसमें इंतशार और तकसीम का बायस बने। क्योंकि अगर उम्मत मुस्लिमा इस तरह की दो रोज़ कल वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम मुस्लिम सरबराहान को ख़त लिखा कि नबी की शान पर इकट्ठा हो, तो इसी एक प्लेटफॉर्म से हम अगर उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी होती है नबी की हुर्मत के साथ फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला हम इत्तेहाद और इनामत के साथ ही तय कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं फ़लस्तीन फाउंडेशन के साथियों का बेहद मशहूर हूँ कि इन्होंने अगर पाकिस्तान में किसी ने फ़लस्तीन का मसला जिंदा रखा है तो सिर्फ फ़लस्तीन फाउंडेशन है, तो वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकार करती है और फ़लस्तीन के हमेशा जो अहम इशूज़ है इसके ऊपर हमें जमा करते हैं, बात करते हैं। तो मैं इंतहाई मशहूर हूँ। बाकी हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, बल्कि पाकिस्तान में जितने भी सियासी लोग हैं, चाहे मजहबी हो, सियासी हो, प्रोग्रेसिव हो, हम कम अज़ कम एक चीज़ पर कम अज़ कम मुतफ़िक़ हैं कि फ़लस्तीन का मसला पूरे मुसलमानों का मसला है, इंसानों की इंसानियत का सबसे बड़ा मसला है। तो इसमें जितने भी हमारे साथियों ने आपसे बात की, तो मैं समझता हूँ कि हम सब की राय भी एक है और इस एक एजेंडे पर हम यहाँ आते हैं, बैठते हैं ताकि कश्मीर का मसला कम अज़ कम हम अपनी हैसियत के मुताबिक कम अज़ कम उसको जिंदा रख सकें और दुनिया की उन हुक्मरानों को हम जोड़ सके कि आज भी पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा इंसानी मसला है तो वो फ़लस्तीन का मसला है, कश्मीर का मसला है। और जब तक इनको अपनी खुदरियादियत और अपनी हुक्मरानी का हक हासिल ना हो उस वक्त तक दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकते हैं। फ़लस्तीन का मसला जब हम पैदा नहीं हुए जब से और चल रहा है, तो खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर फ़लस्तीन फाउंडेशन के हवाले से जो थोड़ी बहुत मालूमात का जो इजाफा किया जा रहा है वो इस फाउंडेशन के हवाले से किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इक़दाम है, इस इक़दाम के ऊपर हम सबको वर्कआउट करना चाहिए। और दूसरा कि जिस तरीके से हर भी शोर और समझदार इंसान अपने हक अदा करे, जो फ़लस्तीन में सारे मसाइल हो रहे हैं वो सब समझते हैं। ये छोटा सा वाक़या बयान करूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में जब नमरूद ने आग में डाला, एक छोटा सा परिंदा अपनी चोटी पानी भरकर आग में जा रहा था, तो किसी ने पूछा कि तेरी इतनी बड़ी आग में छोटे से एक कतरे से क्या फ़ायदा होगा? तो उसने जवाब ये दिया था कि मैं अपने हक पर सोने का हक अदा कर रहा हूँ कि कल को मैं जवाब दे सकूँ कि मैं उन जालिमों के साथ नहीं था, मैं मजलूमों के साथ शामिल था। मैं समझता हूँ फ़लस्तीन फाउंडेशन भी उसी तरीके के अपना हक अदा कर रही है और हम ये हक अदा करते रहेंगे। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम से भी इस तरीके से मैनेज करते रहेंगे। शुक्रिया। गुजारिश करूँगा साबिक़ पुलिस वाइस असेंबली और इनके रहनुमा जनाब महमूद यार साहब से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अकाबरीन फ़लस्तीन फाउंडेशन और मुख्तलिफ सियासी जमातों के ज़ुम्मेदारान, फ़लस्तीन फाउंडेशन साबिर मरियम किस तरीके से इसका मैनेज करते हैं उसके लिए हम तमाम सियासी जमातें हमेशा उनकी मशहूर हैं। ये जो हम अपनी सियासी जमातों में ये इशूज़ इतने बाहम उठाते नहीं हैं, लेकिन हमें ये चाहिए कि अपनी जमातों के प्लेटफॉर्म से भी इसको हम आगे बढ़ाएं। और योम कुद्स को इंटरनेशनल योम कुद्स की तरीके से आखिरी जो जुमा है उसका मनाएं। उनके साथियों ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू कर दी है, ज़्यादा वक्त की तंदर देखते हुए मैं भी यही अर्ज करूँगा कि मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर जो है वो उम्मत मुस्लिमा का मसला है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है और वो अपने छोटे छोटे मसाइल के हल के लिए
मुख्तलिफ तरीकों से इसराइल को तस्लीम कर रही है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए रुकन है। आखिर में मैं तमाम साथी भाइयों का और प्रेस क्लब का खुसूसी तौर से शुक्रिया अदा करूँगा, जिनकी मोहब्बत और काविश से फलस्तीन फाउंडेशन ये प्रोग्राम कर पाती है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरकान सदर सराकीन फलस्तीन फाउंडेशन और उसके रवा मुहैया ये तमाम अफराद पाकिस्तान में फलस्तीन के मसले को वक्तन फ़वक्तन उजागर करते रहते हैं और ये एक अहम जिम्मेदारी है जिसे हम अदा करते हैं और हमारी साथी बरादरान इसको जो है वो कवरेज करते हैं। हम इनके भी मशहूर हैं। बहरहाल आज दुनिया जिस नुक्ते पर खड़ी है वो ये है कि इसराइल और उसके हवारी बरतानिया और अमेरिका और दीगर ममालिक जिन्होंने इन आखिरी अयाम में साजिश बनाई इसराइल को बचाने के लिए और फिर उसके बाद दीनों से जीती और इस तरह की चीज़ें मुतारफ़ कराई। अपना बाज़ ममालिक ने सदर मकाम चेंज किया और उसे यरूशलेम से बैतुल मुक़द्दस मुंतक़िल करने की कोशिश की। बहरहाल ये तमाम आमाल जो उन्होंने अंजाम दिए इसराइल की बका की खातिर वो सब मुस्तहिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारी ये जो जद्दोजहद है वो जारी है और जारी रहेगी। हम तो यहाँ बैठ कर उनकी हिमायत करते हैं और कुछ प्रोग्राम करते हैं, वहाँ के हालात बयान करते हैं, लेकिन वो मैदान अमल में खड़े हैं। वो मुहासरे में होने के बावजूद अब ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर रहे हैं। पहले ये सूरत हाल थी कि एक इन हालात में जहाँ जितनी थोड़ी बहुत जद्दोजहद कोई कर रहा है, फलस्तीन फाउंडेशन के हवाले से अगर मैं कहूँ इस मामले को नाज़िंदा साबिर रखा हुआ है। अल्लाह ताला इन्हें जल्द दे और मेरे आप भाइयों से दरख्वास्त करें कि इस मसले को उठाते रहें कि जिस तरह की बात कही गई कि अपना जो है एक खतरा उस आग पर डाल दें, उसका जो है सवाब हमें तो मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हालात जो है बहुत नाजुक हैं, वो खुद अगर कुछ लड़कर हासिल कर लें, वरना बधाई अगर मैं फिलिस्तीन की बात करूँ तो शायद ना वो बात नहीं आई। लेकिन तारीख इस तरह से भी चल रही है और बैतुल के एजेंडे पर जो तारीख दान में बताते हैं कि इसराइली एजेंडा जो है वो एक ग्रेटर इसराइल की तरफ जा रहा है और वो फनी तक कर होगा। इंशाअल्लाह ये होगा नहीं, अल्लाह का कभी मौके भी नहीं होगा और हमारे मुनफ़ा के हम इस तरह की बात करें। लेकिन जो ज़ाहिर जितना दुनिया बता रही है इस सब को रोकने के लिए एक छोटी सी जरूरत होती है यहाँ पर फलस्तीन फाउंडेशन काम से होती है। अल्लाह ताला इसे कबूल करे और हम सब की काविशों और आप सब यहाँ पर तो आए हैं और कवर करने से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि माह रमज़ान मुबारक में है और आपको पता है कि जो रमज़ान मुबारक का आखिरी जुम्मा है वो यौमुल कुद्स के उन्वान से पूरी दुनिया में मनाया जाता है और फलस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान जो कि अरसे दराज से पाकिस्तान में सरगर्म अमल है, हर साल इस महीने में मुल्क भर में फ़लस्तीन से इदारे यकजहती के लिए और क़िबला अव्वल की बाजियाबी के लिए पूरी एक मुहिम लॉन्च करती है। आज भी जो हमारी सरदस्त कमेटी है मैं तारुफ करवा दूँ तो अपने दाएं तरफ से ही जो अहबाब हमारे साथ हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो रस्मी तौर पर मैं करवा देता हूँ। अल्लामा काज़ी अहमद नूरानी सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमा हैं जमीयत उलमा पाकिस्तान से, सिद्दीक शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की तर्जुमानी कर रहे हैं, जनाब पीरज़ादा हज़रत अली हमदानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नमाज की तर्जुमानी कर रहे हैं। इसी तरह जनाब सैयद अरशद हुसैन नकवी साहब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, जनाब मौलाना बाकर अब्बास जैदी साहब सदर हैं मजलिस वज़ीर मुस्लिमीन सुबह सिंह के,
जनाब मुस्लिम परवेज साहब नायब अमीर जमात इस्लामी, और इसी तरह महफूज यार खान एडवोकेट साहब हैं जो कि साबिक रुकन से असम्बली हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से, मतलूब ऐवान कादरी साहब जो कि आल पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के चेयरमैन, उनके साथ ही जनाब यूनुस पुनेरी साहब हैं जो कि सूबा सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं अवामी नेशनल पार्टी के, और बशीर सरदई साहब हैं जर्नलिस्ट हैं और सोशल वर्कर हैं, समाजी रहनुमा हैं, हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हैं, कश्मीर से भी आपका ताल्लुक है। इसरार अब्बासी साहब यहाँ पर हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, मेजर कमर अब्बास साहब तशरीफ फरमा हैं जो कि MQM से आपका ताल्लुक है, और नाचीज को साबिर अबू मरियम कहते हैं। ये हमारे तमाम जो अहबाब हैं, आपको इल्म है फ़लस्तीन फाउंडेशन के सरबराह कमेटी के अरकान हैं, अपनी अपनी जमातों की तर्जुमानी के अलावा फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान के सरबराह अरकान में से हैं। मैं बगैर किसी और ताख़ीर के जनाब काजी अहमद नूरानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन जो है पढ़कर पेश करेंगे, उसके बाद एक एक जुमला दो जुमलात जो हैं वो हमारे मौजूद अरकान अपनी अपनी ज़बान से बयान करेंगे। मोहतरम काजी अहमद नूरानी साहब। मौजूद सहाफ़ी हज़रात, कैमरामैन, फोटोग्राफर्स, अस्सलाम वालेकुम। हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं कि आप आज की इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अग़राज़ व मक़ासिद को नशर करने में अपना मस्बत किरदार अदा करेंगे। मौजूद सहाफ़ी हज़रात, आप बखूबी आगाह हैं कि 1 बरस से ज़ायद का अरसा बीत चुका है और पूरी दुनिया कोरोना वबा से लड़ रही है। इस उन्वान से लाखों इंसान अपनी ज़िंदगी की बाजी भी हार चुके हैं। पाकिस्तान भी अल्लाह के फज़ल करम से कोरोना की वबा से बखूबी नज़र आज़मा है और इस वबा से निपटने की हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ़ अमल है। इन हालात में दुनिया की नज़रें जहाँ कोरोना पर जम चुकी हैं, वहाँ ये महसूस किया जा रहा है कि दुनिया के अहम तरीन और ख़ास तौर से आलम इंसानियत के सबसे बड़े मसले फ़लस्तीन के हवाले से गफलत बरती जा रही है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस माह मुबारक रमज़ान के आगाज़ के अय्याम में की जा रही है ताकि इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दुनिया भर में आवाज़ पहुँचाई जाए और बिलखुसूस मज़लूम फ़लस्तीनियों को अपनी कोशिशों और जद्दोजहद से आगाही फराहम की जाए। मौजूद साथी हज़रात, मौजूदा ज़माना फ़लस्तीन कास के लिए इंतहाई संगीन नौइयत इख्तियार कर चुका है। एक तरफ कोरोना वबा के मसाइल हैं